Good afternoon, everybody. I'm speaking to you on the 19th of August and welcoming you to Charts and Beyond episode number 40. क्या अभी एक बहुत जबरदस्त सवाल अपने सबके सामने है, क्या ये मार्केट अपना रेंज से बाहर निकलेगा? ये रेंज इतना समय से परसिस्ट कर रहा है, ना इससे ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है. दिस इज ऑलमोस्ट लाइक बिकम दैट ओल्ड अजीत वाला जोक कि एसआईपी का फंड्स मार्केट को गिरने नहीं दे रही और ये वर्ल्ड वर्ल्ड एलिमेंट जो है ट्रम्प वगैरह वगैरह जो भी है ये मार्केट को बढ़ने नहीं दे रहे. एज अ रिजल्ट वी आर इन अ रेंज. तो क्या मार्केट इस रेंज से बाहर निकलेगा? क्या कोई सेक्टर इसमें प्ले अपने को मिलेगा? क्या करना चाहिए इस मार्केट में? व्हाट आर द एरियाज दैट वी शुड टेक अ लुक एट? ऐसे सब जो सवालों के लिए you should stick around and watch with me as we unfold. I start with the opening screen, which, as I always explained, all the news and views of the world taken together get reflected in stock prices, which you see on the screens. And then you think about them, ruminate about them, and then you, through time, you assign a certain value to the prices, and then that gets captured on the chart as whatever patterns that we see. And then based on that, we decide through the medium of charts and technical analysis how we shall be capturing all this. So, therefore, in this edition of Charts and Beyond, what are we going to look at? We are going to be looking at number of things. The havoc being caused by CAS in the market among traders. तो ये जो सिचुएशन है ये अपन इसकी तरफ देख रहे हैं. Then we are going to be looking at Q1 results and what is their impact. Then we are going to be looking at FI flows and how and what they are signaling to us. Then, as usual, we are going to have a sector focus, and that is going to be on defense. Then we are going to be doing our Nifty analysis. And then I've just culled up some interesting facts about dividends. Let's go into the topic number one, CAS induced uncertainty. तो देखिए लास्ट वीक में क्या हुआ. सेंसेक्स 78,000 कॉल. दिस इज ऑन एक्सपायरी डे. It went from 2 rupees to 80 rupees in the matter of some 1 or 2 minutes. Similarly, Sensex 78,000 put went from 166 down to zero. Why? Because the equilibrium price, which was discovered at 328, which is under the new system, I'm sure everybody is now clear as to what is the new system. उसके बारे में मैं डिटेल नहीं बता रहा हूँ. इसके बारे में काफी डिटेल पब्लिश हो चुकी है. So the indicative equilibrium price, which was 78,860 till 3:28 p.m., suddenly became 79,080. मतलब करीब करीब 200-300 पॉइंट का फर्क आ गया जिसमें बहुत बड़ा फेरफार हुआ. This is not the only thing which has happened. There has been a lot of changes which have happened with respect to the price action in this cash window. The biggest beneficiary of this closing session were the arbitrage funds. किसी को तो फायदा होना चाहिए ना. So arbitrage fund को फायदा हुआ and they managed to record their single highest day of return of about 0.5% on a single day. आप समझा करो इनका 0.05% रिटर्न होता है मैक्सिमम ऑन अ सिंगल डे. बट जिस हफ्ते में ये कैश इंट्रोड्यूस हुआ इट बिकेम 8 to 10 times इन अ सिंगल डे रिटर्न. इनका 0.5% पर मंथ होता है, ये सिंगल डे में रिटर्न आ गया. एंड दिस was actually something like a 7.3 standard deviation. आप समझते हो जिसको ये स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में आइडिया है, यू कॉल इट अ सिक्स सिग्मा इवेंट मीन्स इट इज समथिंग एक्सट्रीमली आउट ऑफ द ब्लू. मतलब सिक्स सिग्मा इवेंट तो एकदम रेयरिटी है.
दिस बिकेम अ 7.3 सिग्मा इवेंट। तो आप समझा करो कि कितना डिविएशन आ गया मार्केट में। और इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि मार्केट में जो है ना, ये जो वॉल्यूम है मार्केट में, वो पूरा डिसअपियर हो गया शाम को। राइट। सो ये लास्ट सेशन में जो है, द मार्केट वॉल्यूम हैज कंप्लीटली डिसअपियर्ड। सो what has really happened in an effort to make the markets more efficient? The opposite has been the effect. All right, this may be temporary and all that, because everybody made appeals, and yesterday also the SEBI chairman said कि भाई cash is here to stay. Everybody will have to learn to adjust. And what I read was that the market volume, if you take the segments, market में highest volume होता है पहला 15 मिनट और लास्ट 15 मिनट। तो पहला 15 मिनट में जो वॉल्यूम होता था, दैट यूज टू बी अराउंड 13 to 14% ऑफ द डेज वॉल्यूम। ओके, इतना वॉल्यूम कैप्चर होता था। और एंडिंग सेशन में भी करीब करीब 12 to 13% ऑफ द वॉल्यूम होता था डे का, एवरेज डेली वॉल्यूम का। वहां से लेकर के आपको पता है कि एवरेज डेली वॉल्यूम का क्लोजिंग सेशन में कितना वॉल्यूम हो गया? जस्ट 1.59%। दैट्स ऑल। इतना कम हो गया। जो 12-13% होता था दिन का वॉल्यूम का, वो 1.59% हो गया। इतनी मार्केट का वॉल्यूम गिर गई। सो दैट हैज लेड टू अ वेरी बिग डिसलोकेशन इन द मार्केट। अभी लोग ऐसे कर दिए कि भाई 315 के बाद मुझे मार्केट में सौदा करना ही नहीं। आई डोंट वांट टू ट्रेड। और ये क्या है? दिस इज नाउ, ये मैंने इसको एंटाइटल किया है कैश इंड्यूस्ड अनसर्टेनिटी। तो ये कैश इंड्यूस्ड अनसर्टेनिटी में क्या है? दिस इज बिकम वन ऑफ द सीरीज ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या क्या है अब देखो, मैंने एक छोटी सी लिस्ट बनाई थी। दिसंबर 2020 में जो लिवरेज था फॉर ऑप्शन ट्रेडर्स, उसका 50% निकल गया। फिर मार्च 21 में 75% निकल गया। और सितंबर 23 में, सितंबर 21 में 100% ऑफ लिवरेज निकल गया। उसके बाद सितंबर 23 में निफ्टी, बैंक निफ्टी के जो एक्सपायरी थे, उसको शिफ्ट कर दिया फ्रॉम थर्सडे टू वेनेसडे, while BSE launched the Sensex वीकली एक्सपायरी ऑन फ्राइडे। इसके साथ क्या हुआ? एवरी डे वी हैड सम एक्सपायरी। तो ये भी एक इतना बड़ा टमल्ट क्रिएट किया था मार्केट में। बट लोगों को कितना रीएडजस्टमेंट करना पड़ा, ये आप सोचिए। अब नवंबर 2024 आया, तो मार्केट ने सडनली डिसाइड किया कि भाई फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और दूसरे एक दो जो इंडेक्स थे जिसके वीकली एक्सपायरीज थे, बोले ये खत्म। ओनली निफ्टी एंड सेंसेक्स वुड रिमेन। तो ट्रेडर्स को फिर से एडजस्ट करना पड़ा। सारे स्ट्रैटेजीज, सारे उनके जो अप्रोचेस थे, ये सब चीज को एडजस्ट करना पड़ा। Everything is being done with an idea of bringing more efficiency to the market, कि भाई स्पेकुलेशन कम हो, ये वो। February 25 में क्या किया? बोले एक्सपायरी डे मार्जिन बेनिफिट को हटा दिया। एक्सपायरी डे मार्जिन बेनिफिट वाज अ big thing which people would take advantage, and then the trading volume used to be really big. तो इससे क्या हुआ? एक्सपायरी डे मार्जिन को हटा दिया तो एसटीबीटी ट्रेड जो होते थे, बीटीएसटी ट्रेड कम होते थे, एसटीबीटी काफी होते थे। ये सब में तकलीफ आ गई। तो दैट स्टार्टेड टू ड्राई अप। फिर आया 1 सितंबर 2025। वहां पर निफ्टी की एक्सपायरी शिफ्ट हो गई फ्रॉम थर्सडे टू ट्यूसडे। तो अगेन रीएडजस्टमेंट्स करने पड़े। अब ये समझो कि क्या ट्रेडर्स, भले ट्रेडर्स आर स्मॉल इन नंबर कंपेयर टू द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स, बट दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ द मार्केट भाई। They are the ones creating all the volumes into which the investors are participating. अभी आप उनको लगातार
2020 से लेके 2025 तक लेफ्ट एंड राइट लाफा चढ़ाते जा रहे हो, तो कहाँ जाएंगे बेचारे ट्रेडर्स। इसके ऊपर और भी प्रॉब्लम दिए, ऑप्शन एसटीटी जोर से बढ़ा दिया आपने लास्ट फ्यू ईयर से। उसके बाद उसका क्या हुआ नतीजा, बिडा स्प्रेड एकदम बढ़ गया। बिडा स्प्रेड बढ़ जाएगा तो किसको फर्क पड़ेगा, ये ट्रेडर को ही फर्क पड़ेगा, उसके लॉसेस बढ़ते हैं तो स्लिपेज बढ़ जाते हैं। बिडास बढ़ जाएगा तो स्लिपेज बढ़ेगा तो नुकसान ही बढ़ेगा। अब आप बड़े बड़े रिपोर्ट पब्लिश करते हो कि 93% ऑफ द ट्रेडर्स आर लूजिंग मनी। साथ साथ में क्या हो गया, ग्लोबल वॉलेटिलिटी बढ़ गया। मिस्टर ट्रम्प आ गए इस सिनेरियो में, वो आकर के ग्लोबल वॉलेटिलिटी को बढ़ा दिए, फिर ट्रांजैक्शन के कॉस्ट बढ़ा दिए आपने। सो सो मेनी थिंग्स। और अभी चल करके इसके ऊपर से क्लोजिंग, क्या बोलते हैं, क्लोजिंग ऑक्शन सेशन, सीएएस। तो एवरी फ्यू मंथ्स इफ यू नोटिस देयर हैज बीन सम स्ट्रक्चरल चेंज और दी अदर। ये छोटे मोटे चेंजेस होते हैं ना, ये ट्रेडर्स अपना दे टेक इट इन देयर स्ट्राइड एंड दे मैनेज टू थिंक। बट जब भी स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ना, दैट टू विच इज हैपनिंग एवरी फ्यू मंथ्स, then traders have to completely, they are forced to rebuild their system. और ये जो बात है ना, रीबिल्डिंग योर सिस्टम, इट इज नॉट एन इजी थिंग। आई नो दैट फॉर अ फैक्ट बिकॉज आई स्पेंड all my time trying to build systems which can, help me stay above what the market does, because that is how I can hope to make some money. So rebuilding systems is not easy. Though every time you change something and land one slap in the face of the trader, लिक्विडिटी इज द वन विच टेक्स अ हिट। जैसा मैंने आपको बताया, 12-13% का जो वॉल्यूम हुआ करता था क्लोजिंग सेशन में 15 मिनट में, वो अभी 1.59% ऑफ द एवरेज ट्रेडेड वॉल्यूम पे आता है। ठीक है, अल्टीमेटली दिस विल ऑल्सो गेट एडजस्टेड टू, बट वाइल इट इज हैपनिंग सो मच मोर ऑफ लॉसेस, व्हाट इज द पॉइंट। अभी मेरा एक सवाल है सेबी या जो भी अथॉरिटी वाला है कि कैन यू शो मी इवन वन रिपोर्ट proving that retail trading losses, you know, have actually reduced because of all these interventions. इसका एक रिपोर्ट होएगा तो आई विल रियली बी हैप्पी टू सी। अगर ये मार्जिन रिड्यूसन करने से, ये वो इतने सारे जो स्टेप्स मैंने गिनाए आपको 2020 से लेके अभी 2026 तक, यहाँ से इतने लोग को फायदा हुआ, इतना नुकसानी कम हुआ और इतना लोग को फायदा हुआ, ऐसा कोई रिपोर्ट भी साथ साथ में पब्लिश कर दे वैसे भी, तो ये अपना जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उस पर बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। एंड ऑल ऑफ अस कैन स्लीप बेटर थिंकिंग दैट वट एवर सेबी इज डूइंग इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कम्युनिटी। ये स्मॉल इन्वेस्टर करके भजन करते रहते हैं, और बहुत मार्केट चल रहा है हर एक टाइप ऑफ इन्वेस्टर से, जिसमें ट्रेडर्स है वो आर, आई वुड से, वन ऑफ द बैकबोन्स ऑफ द मार्केट। ये बैकबोन, इसकी रीढ़ की हड्डी, आप ऐसा उसको बेंड करा रहे हो तो रीढ़ ही टूट जाएगा, तो फिर क्या करेंगे। सो in the, like I said, in the effort to make markets more efficient, you should not make trading more expensive or trading more complicated. That is what has happened. And now what is happening because of this? You're pushing serious traders. There are many, many serious traders. ये सब क्रिप्टो की तरफ भाग रहे हैं। अब क्रिप्टो इज, यूर पुशिंग देम, क्या है उसको क्या बोलते हैं, फ्रॉम फ्राइंग फ्राइंग पैन इनटू द वॉट एवर, इनटू द फायर, ऐसा। what is the point in doing all this? I think they are being pushed towards crypto, they are being pushed towards international markets. अरे जो लोकल मार्केट से डील करने का जिसका कैपेसिटी नहीं है, आप उसका ये क्रिप्टो का कुआं में धकेल देंगे, इंटरनेशनल वाटर्स का जो महानदी है उसमें डाल डाल देंगे, कहाँ जा कर के पूछेंगे। तो ये सब बैड न्यूज हो गया। ये सब में एक अच्छा गुड न्यूज है, वो गुड न्यूज है नियो ट्रेडर। क्यों? आप बोलेंगे, घूम फिरा के आप वही पॉइंट पे आ गए,
भाई मैं वही पॉइंट पे आऊंगा ना, जो मेरी मेहनत है कि ट्रेडर्स को कोई सुविधा हो जाए. अल्टीमेटली नियर ट्रेडर इज द चैंपियन टेक्निकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर. Technical analysis is not by capturing the graph, but by capturing what lies behind the graph. ये मैंने पहले मेरे चार्ट्स एंड बियॉन्ड के वेबिनार्स में भी बोले हुए हैं कि having a subscription to NeoTrader is like employing 10 or even 100 technical analysts sitting by your side as you trade. इतना आपको वो चीज कंट्रोल देगा, इतना आपको फोकस रखेगा कि जो आप सोचते हो वो सोच आपका एकदम सही दिशा में जाए. इतना सब अप डाउन हो रहा है, वोलाटिलिटी हो रहा है, सो मेनी चेंजेस दैट आर कमिंग अबाउट एवरीवेयर, that you cannot do without a software like NeoTrader. तो ये मेरा एक छोटा सा प्लग है. मेरा सॉफ्टवेयर को मैं प्लग नहीं करेगा तो कौन करेगा भाई? बाकी तो कोई कोई नहीं करेगा. और ये भी आप समझ लें कि जो ये CAS है ना, ये कोई नई चीज नहीं है. ये अमेरिका में भी है, जर्मनी में भी है, यूरोप में भी है, हांगकांग में भी है, सब लोग में था. बट कोई भी जगह में जो इंडियन फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया हुआ ना, वैसा नहीं है. लाइक in America, for example, the trading simultaneously comes to close and everything is decided as per the close. उधर ये कोई रैंडम सिस्टम नहीं है कि 328 को एक रैंडम प्राइस लेके उस पर क्लोज देगा, फिर और चलते रहेगा डिस्कवरी सिस्टम टिल 335. उसके बाद ये जो डेरिवेटिव सेगमेंट 340 तक चलते रहेगा. अरे क्या, व्हाट फ्लक्चुएशंस आर कमिंग. आपका क्लोजिंग प्राइस एक है निफ्टी का, उधर जो फाइनल क्लोजिंग प्राइस आता है उसमें तो 100 पॉइंट, 200 पॉइंट का फर्क आ रहा है. इसमें कोई कोई लोग अनगिनत अमाउंट ऑफ फायदा उठा रहे हैं. छोटा निवेशक को कहाँ फायदा हो रहा है? छोटे ट्रेडर को कहाँ फायदा हो रहा है? उल्टा उसको नुकसान ही हो रहा है. सो अल्टीमेटली दिस विल ऑल सेटल डाउन. लेकिन उसके बीच जो नुकसान ही हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा भाई? कोई कर नहीं सकता है. खैर, ये सेबी जाने और उन लोग के थिंकर्स जाने क्या है ये. आई वांटेड टू स्टार्ट विद दिस. मेरा अपील है कि इसको थोड़ा ठीक से देखे और जल्द से जल्द कंट्रोल में लाए, ताकि ऑप्शन ट्रेडर को इतना जितना असुविधा आज हो रहा है वो ना हो. राइट, सो दैट इज अबाउट कैश इंड्यूस्ड दिस थिंग. लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक. Q1 रिजल्ट्स अभी मोटे मोटे समय आ रहा है खत्म होने के लिए, एंड दे हैव बीन प्लेजेंटली सरप्राइजिंग. व्हाई प्लेजेंटली सरप्राइजिंग? अब मैंने हाल में देखा कितने आए थे, तो जहां तक मैंने देखा कुछ 4,550 कंपनीज हैव रिपोर्टेड Q1 FY27 results so far, and across all stocks, median net sales growth is 17.5%, or EBITDA growth is 22% year on year. ये, why is it something pleasantly surprising? Because after the breakout of the war in the last quarter of the last financial year, it was presumed that Q1, that is April to June, would be a write-off quarter. यहाँ पर कुछ अच्छा हो नहीं सकता, क्योंकि ये वॉर की वजह से ये सारे तकलीफ में रहेंगे. मार्जिन्स में हिट होगा, रेवेन्यू में हिट होगा, बिजनेस विल बी हिट एंड ऑल दैट. एंड देन सी व्हाट आर द रिजल्ट्स व्हिच हैव कम. It has been really something very, very attractive. Attractive, okay, that's a relative sense. But certainly, if you see here, Q1 revenue growth is the best in last 2 years. ये तो बहुत ही बढ़िया है. यहाँ पर देखिए, इधर वो चार्ट है. दिस इज द रेवेन्यू चार्ट. वन इज द टोटल सैंपल एंड एक्सक्लूडिंग बैंक्स एंड फिनेंसेस. ये यूजुअली ऐसे ही लिया जाता है, because banks and finances are measured in a different way. This is all the other corporates. Look at the change in the revenue for this June quarter. Fantastic increase. Similarly, look at the trend in quarterly net profit. Okay, March 26, it was much better than June 20, but this is also not bad. That means the profits which were expected to go into the bloody gutter,
That has not happened. They have kept pace nicely. So revenue has really grown. If it remains and sustains, and if we have been able to capture this, it will be something which is something good to look forward to. So quarter one results have been a surprise, and that is a good thing. And that is one of the reasons also why the market is not going down. Okay. We have all been looking at the market going down or not up and all that. ठीक है. अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. एफ आई फ्लोस. एफ आई फ्लो तो हॉट एंड कोल्ड हॉट एंड कोल्ड हॉट एंड कोल्ड चल रहा था. बट सडनली आप रीसेंट ट्रेंड्स देखेंगे तो आप देखिए एफ आई फ्लोस का एक छोटा सा टेबल बनाया मैंने मार्च टू जुलाई. ये सब माइनस माइनस 1,22,000 करोड़, 70,000 करोड़, 55,000 करोड़, 49,000 करोड़, और फिर जुलाई में -9,000 करोड़ ओनली. तो मतलब क्या, ये तो घटते ही आ रहे हैं ना सेलिंग. So this selling is going on dropping. So that is good news. It is good news because कोरिया वगैरह में जो मोमेंटम चेस कर रहे थे, ताइवान में, कोरिया में, चाइना में to some extent, that has stopped because those markets have also started to pull back. So the selling force is now minus. ये सब माइनस में है. हाँ? तो 1,22,000 करोड़ बेच रहे थे, अभी केवल 9,000 बेचे. सो दैट कैन रिवर्स. अभी आप देखेंगे तो अगस्त में पहले जो 15 दिन था, पहले 15 दिन में देर इज एक्चुअली अ पॉजिटिव इनफ्लो. ओके, इट इज नॉट समथिंग वेरी ह्यूज बट इट इज अ पॉजिटिव इनफ्लो. सो दिस इज अ बिग चेंज. अच्छा, बगल में तो ये ओ आई एन इंडेक्स फ्यूचर है. ये तो मैं बार बार कहता हूँ, ये थोड़ा डायरेक्शनल कम और हेजिंग ज्यादा, ऐसा मेरा अंदाजा है. बट ये आप देखेंगे तो समवेयर ओवर द रीसेंट टाइम्स शॉर्ट कवरिंग जरूर आई थी. तो ये 2 लाख प्लस का कॉन्ट्रैक्ट हो गया था. वहां से ये चल करके करीबन 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट तक आया था. अब 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी कोई छोटी सी चीज नहीं है. बट अगेन ये घटाना शुरू हो गया. और ये 2-4 दिन पहले का ग्राफ था जब भी मैंने बनाया था ये स्लाइड. इसके बाद और कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए. दैट इज एफ आई इंडेक्स शॉर्ट्स हैव अगेन हिट समथिंग क्लोज टू 1,96,000 contracts as of yesterday. So FIs continue to sell in the futures. So I think those are still, I do believe that they are hedging short and partly they may be directional. So only when this becomes really a good short covering market can we really breathe easy. But this, what table I have shown here, minus 1,22,000 in March, going to only minus 9,000 crores in July. When the August figure comes, that also we will see. But like I said, till last week of August, we were net plus. So that's again the good news. Let's hope this shorting in FI index future changes as we move along. All right. So that is about FI inflows, and we have discussed in earlier videos of mine that why we should be keeping track of all of these things, right? जो हमारे पुराने वीडियोस देखे नहीं हो, अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो हमारे साथ, तो जरूर हमारे चैनल पे जाइए, यूट्यूब चैनल में न्यू ट्रेडर के, वहां पर में जाके वीडियो लिस्ट में देखिए. वहां पर चार्ट्स एंड बियॉन्ड के आपको सारे आपको एपिसोड्स मिलेंगे. दिस इज एपिसोड नंबर 40. आपको सारे पुराने वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में. There is some bit of timeliness about it, but a lot of information is timeless. मतलब आप उसको, उसकी जो सीख है वो लेकर करके आपका नॉलेज खुद आप इंक्रीज कर सकते हैं. आपका देखने का अंदाज और देखने का नजरिया में जरूर एक बेटर बदलाव आएगा, ये मेरा उम्मीद है. All right, so that was about FI inflows. So now let us go ahead into the next, and that is, what is the sector in focus? Sector in focus for this time's charts and beyond, I'm taking is defense sector. अब डिफेंस सेक्टर में क्यों ले रहा हूं? क्योंकि लगातार न्यूज आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक न्यूज आ रही है.
अभी देखिए रिलायंस वाला ने भी बोल दिया कि भाई मैं सब लाइन में घुस रहा हूं, तो डिफेंस में मैं क्यों पीछे रह जाऊं भाई। तो उन्होंने भी घुस गया अंदर। तो अनंत अंबानी साहब ने ये, उनको थोड़ा जू भी चलाने से थोड़ा टाइम निकाले उन्होंने, और बोल दिया टुगेदर वी एम टू बिल्ड एन एंड्योरिंग नेशनल कैपेबिलिटी दैट कैन मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन डिफेंस ऑफ कोर्स। सो ये वो लोग ने भी कुछ एविएशन पैड निकाला, कोई बड़ा गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स, फलाना फलाना, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, सो मेन सो। तो ऑर्डर्स भी है, न्यू लॉन्चेस है, कोलैबोरेशन है, बहुत कुछ है। एचएएल ने अडानी और बीएमएल के साथ करके कोई प्रचंड हेलीकॉप्टर प्रोडक्शन है, बोले इंडियन आर्मी के लिए ये हम लोग बना देंगे। बीएल ने कहा हमने कोई जॉइंट वेंचर कोऑपरेशन कर दिया विद सम कंपनी फ्रॉम फ्रांस टू मैन्युफैक्चर हैमर प्रिसिशन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन्स। तो एक के बाद एक के बाद एक कुछ ना कुछ तो आ ही बैठा है। सो ये साथ साथ में ये गवर्नमेंट ने भी एक बाण छोड़ दिया, saying defense companies are anticipating stellar orders extending through 27 and 28, backed by 7.85 lakh crores union budget allocation and aggressive export growth। तो आप देखो, तो हर दिशा से एक्सपोर्ट में खबर ही खबर अच्छा है, right? So if this is the case, then we have to look at defense as a sector। तो अभी मैं डिफेंस के बारे में थोड़ा और बाद में बात करूंगा, बट उसके पहले अपन थोड़ा सा एक मार्केट को देख लेते हैं। मार्केट को देख लेते हैं तो क्या है, सेम ओल्ड हो गया। क्या है वो? नो चेंज इन द रेंजिंग एक्शन, उधर का उधर ही पड़ा हुआ है। क्यों? नो ट्रिगर्स विजिबल इन द शॉर्ट टर्म। अपसाइड के लिए कोई ट्रिगर आ ही नहीं रहा है। अभी अपसाइड के लिए ट्रिगर नहीं आ रहा है, तो जो मैंने लास्ट टाइम, आपको याद हो या आप जा करके पुराने वीडियो देख लीजिए, मैंने कहा था कि अपसाइड ट्रिगर नहीं आ रहा है और डाउन साइड में वीकनेस का कोई इजाफा हो रहा है। सो अभी तक कोई फ्रॉम माय लास्ट वीडियो टू टुडे, लास्ट चार्ट्स एंड बियॉन्ड 39 नंबर और 40 नंबर में कोई नया अपसाइड ट्रिगर तो आया नहीं। सो आई वुड एक्सपेक्ट दैट द वीकनेस में कंटिन्यू। और फिर भी रुपया तो आ ही रहा है। सो मनी इज क्लियरली गोइंग इनटू द स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस। वो क्यों हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ चार्ट के जरिए। अच्छा, मैंने एक ट्वीट किया था 9th अगस्त को, कॉलिंग फॉर अ ट्रेंड चेंज डेट ऑन 11th अगस्त। अब 11th अगस्त से बड़ी गिरावट आई और आज तक चल रही है। नाउ दिस फॉल हैज बीन गोइंग ऑन फॉर सेवरल डेज। अभी आगे क्या है, आगे का बात भी मैं बता रहा हूं कि देर इज अ ट्रेंड लाइन सपोर्ट विच इज नियर 24,000 एंड नेक्स्ट टर्न डेट, इमीडिएट टर्न डेट जो दिख रहा है मेरे को, वो है 24 अगस्त। आज हो गया 19 अगस्त, तो बहुत ज्यादा दिन होपफुली अपने को ये बेयर नहीं करना पड़ेगा। लेट्स सी दिस ऑन द चार्ट्स। चार्ट में क्या दिखा रहा है, तो वही मैं दिखा रहा हूं कि ये निफ्टी, और अब की बार मैंने ये बैंक निफ्टी का भी चार्ट लगा दिया। दोनों में आप देखेंगे तो एक बड़ा लेवल का रेंजिंग है, और उसके भीतर भी एक छोटे लेवल का रेंजिंग है, और छोटे छोटे प्राइस एक्शन हो रहे हैं। देर इज नो बिग प्राइस एक्शन। वाई? बिकॉज देर इज नो ट्रिगर, एंड वट एवर ट्रिगर इज कमिंग इज ऑन द नेगेटिव साइड। अब नेगेटिव साइड में ट्रिगर आ रहा है लेकिन घटता नहीं है। क्यों? एसआईपी का मनी यहाँ पे बैठा हुआ है। एसआईपी का मनी आ रहा है तो डोमेस्टिक्स को तो खरीदना ही पड़ रहा है। डोमेस्टिक्स खरीद रहे हैं तो जो एफआई बेच रहे हैं उसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं और नए नए चीज ले रहे हैं। तो इसके लिए देर इज अ व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। ये एक फ्रेज है, आपको पता नहीं है तो गूगल करके देख लीजिए। इट इज एन इम्पास वेयर नाइदर पार्टी इज विनिंग, राइट? सो इट्स कॉल्ड अ मैक्सिकन स्टैंड ऑफ। तो ये एक चल रहा है इन द मार्केट। तो दिस इज लाइकली टू कंटिन्यू। अच्छा, ये आप देखेंगे तो मैंने आपकी बार हमारा जो नियो ट्रेडर ट्रेंडर ऑसिलेटर है उसको भी मैंने ऐड ऐड कर रखा है। ये मैंने वीकली टाइम फ्रेम में लिया हुआ है। तो वीकली में रेड लाइन इज ऑन टॉप, रेड लाइन इज ट्रेडिंग बिलो इट्स ट्रिगर लाइन। तो मतलब जो शॉर्ट टर्म का जो वीकनेस है ना वो अभी भी परसिस्ट कर रहा है। वो बैंक निफ्टी में
वो थोड़ा सा कट हुआ था बिकॉज बैंक निफ्टी दिस रैली was a little bit more decent in terms of momentum support. तो आज के तारीख में आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी इज डूइंग स्लाइटली बेटर कंपेयर टू द निफ्टी. तो ये जो चीज है ना, दिस कीप्स ऑन गोइंग दिस वे एंड दैट वे. तो कभी निफ्टी अच्छा करेगा, कभी बैंक निफ्टी अच्छा करेगा. दैट विल कीप ऑन वेरिंग. बट देन नाउ द पॉइंट इज currently the red line has taken its way down. अच्छा, नीचे क्या है? ये एक रिलेटिव स्ट्रेंथ कंपैरेटिव है. किसके साथ? मैंने कंपेयर किया हुआ है एनएससी 500, दैट इज द ब्रॉडर मार्केट. ब्रॉडर मार्केट के साथ जब भी मैं कंपेयर करूं, निफ्टी तो अभी भी ब्रॉडर मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है. ये जो ऑरेंज लाइन है ना, जीरो के नीचे चल रहा है. तो इसका ये मतलब है कि निफ्टी ब्रॉडर मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है. बैंक निफ्टी आप देखिए, ऑन द अदर हैंड, इट इज आउट परफॉर्मिंग द ब्रॉडर मार्केट. क्यों? यहां पर आपका लार्ज कैप बैंक्स आ गए, स्मॉल कैप सॉरी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आ गए, और पब्लिक सेक्टर बैंक्स आ गए, और आपके छोटे बैंक्स आ गए, बड़े बैंक्स आ गए, सारे आ गए ये. ठीक है, तो वहां पर कुल मिला के बैंक्स आर राइट नाउ, इट सीम्स अ बेटर इंडेक्स टू ट्रेड इज बैंक निफ्टी compared to the nifty. Or if you're trading them for the longer term, there is no trade, right? It is better to wait for a break of a range or a decisive signal or a trigger in one direction. अगर आपको इंडेक्स ट्रेडिंग करना ही है तो आप बैंक निफ्टी में करिए एज ऑफ द मोमेंट. राइट, सो दिस इज द सिग्नल विच इज एक्चुअली कमिंग आउट ऑफ इट. तो मैंने कहा था कि मनी सीम्स टू बी मूविंग टुवर्ड्स मिड एंड स्मॉल कैप. अभी मिड एंड स्मॉल कैप में क्या है? अभी आप देखिए, ये एक वीकली चार्ट है मिड कैप 100, और ये वीकली चार्ट है स्मॉल कैप 100. ये दोनों, अनलाइक द निफ्टी एंड द बैंक निफ्टी, दे आर बोथ ट्रेडिंग एट नियर ऑल टाइम हाइस, और ऑल टाइम हाई भी छपके भी आया. तो इसका मतलब तो बहुत साफ है कि जो भी रुपया बाजार में आ रहा है, दैट इज गोइंग इनटू मिड कैप एंड स्मॉल कैप. सो ये मैं पहले भी 39 और 38 एपिसोड्स में इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं कि भाई, यू मस्ट नाउ रिसर्च मोर into the mid cap and small cap area if you want to find out performing stocks. पिछले 39 में भी मैंने काफी डिटेल में कवर किया था कि भाई एफआई पैटर्नाइज स्टॉक्स कौन से चल रहे हैं, और कोई रिटर्न प्लेट भी आपको दिखाया था, बहुत सारे चीज ऐसे दिखाए थे. उसके पहले 38 में भी मैंने आपको सेक्टर दिखाया था, सेक्टर फोकस. तो ऑल दीज आर परफॉर्मिंग एंड यू शुड गो देयर एंड डू योर रिसर्च. तो ये आप देखिए मंथली ट्रेंड एंड नेट इनफ्लोज, ये भी मैंने आपको लगाया. लार्ज कैप फंड्स में देखिए पैसा तो आ ही नहीं रहा है. ये रेड जो बार है, ये लार्ज कैप फंड्स है. इसमें रुपया नहीं आ रहा लोगों को, एसआईपी वाले का भी और ये लमसम वाले का भी, ये नहीं आ रहा है. और ये जो जुलाई में आप देखेंगे, इट इज नेगेटिव फ्लो एक्चुअली इन लार्ज कैप. सो दैट शुड टेल यू व्हाई these two sector segments, that is the mid cap segment and the small cap segment, are outperforming, the large cap segment. So where is your money to go? Please do research in this. और ये रिसर्च में आपको बहुत बढ़िया मदद देगा हमारा न्यू ट्रेडर सॉफ्टवेयर, बिकॉज दैट इज नाउ कवरिंग द स्टॉक्स विच आर ऑन द मूव. तो आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूं आपको मल्टी बैगर मिल जाएगा न्यू ट्रेडर से, बिकॉज इट्स अ मोर एक्टिव वे ऑफ एनालाइजिंग मार्केट. बट आपको 1%, 2%, 4%, 5%, 10%, 15% ऐसे जो रिटर्न आपको कंसिस्टेंटली निकालना है, तो बहुत सारे मेथड्स है नियो ट्रेडर के अंदर जो आपको ये काम करने में सुविधा दे देगी. So that is what you need to do. You need to contact our sales staff or our support staff and ask them कि भाई, Dr. Narayan said in the webinar that in NeoTrader you have got facilities to make several percentage points using NeoTrader, and on a short-term investing basis or on a positional trade basis और a momentum portfolio construction basis, ये सब का डिटेल आपको वो लोग बताएंगे. And this is something that we are proud of having created with NeoTrader. So please, those who are listening to this podcast of mine, go and please check it out. It is something I promise you
that you will be very happy with what you see. And this is evidence for you. This is all mutual fund inflows. कहाँ पैसा जा रहा है? स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप तो भैया भजन कर रहा है जुलाई में, उस पर कोई पैसा नहीं आ रहा है, उल्टा वहां से बाहर जा रहा है पैसा. दिस इज मंथली ट्रेंड इन नेट इनफ्लोस. वो देखो रुपया ऊपर गया तो बट नेचुरल कि ये मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स या उसके उसके अंदर जो स्टॉक्स है, 100 स्टॉक्स है, ये दे आर द परफॉर्मिंग स्टॉक्स. और अपने को रुपया कमाना है तो परफॉर्मिंग स्टॉक्स पे रहना है. वेरी सिंपल लॉजिक ना. इसके अनुसार काम करिए तो आपका रुपया ऐसे मार्केट में भी बनेगा. Market is always our land of opportunity. It is for us to know how to take advantage of that opportunity. And this commentary of Charts and Beyond, I use it just to inform our viewers how to take advantage of this opportunity by educating on how to think, how to look at markets, what are the important points that you should pay attention to, and how you can decipher what the messages that various data points are sending. All right. सो ये सब थोड़े मीडियम टर्म के बात हो गए, थोड़ी शॉर्ट टर्म का भी बात हो जाए तो ये डेली चार्ट हो गया. अब ये डेली चार्ट में आप देखिए, ये डेली चार्ट है, अभी इमीडिएट था. ये एक सिंपल सा ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है ऑरेंज कलर का, ये तो आपको दिखाई दे रहा है. ये ऑरेंज कलर का ट्रेंड लाइन में सपोर्ट आएगा 24,000 के करीब, गिव और टेक प्लस माइनस 100. अभी 24,000 में 100 पॉइंट का कोई मायना ही नहीं. तो अराउंड 24,000 should be your area where some support should develop. क्यों? पहले भी हुआ है, यहाँ भी उसने डिमांड आया है, इधर भी डिमांड आया है. तो इसको टेक्निकल पार्लेंस में बोलता है दिस इज अ रीजनेबली वेल टेस्टेड ट्रेंड लाइन. तो वेल टेस्टेड ट्रेंड लाइन में यू एक्सपेक्ट इट टू वर्क. अच्छा, इसमें जो ट्रेंड लाइन में पूछेंगे तो एक लाइन का क्या मायना? एक लाइन का कोई मायना नहीं होता है. जो टेक्निकल एनालिसिस से वाकिफ नहीं है वो भी समझते हैं कि ये ट्रेंड लाइन एक चीज होता है. सब लोग ट्रेंड लाइन का बात करते हैं. तो इसमें मैं एक सिंपल सा चीज आपको समझा दूं. ये ट्रेंड लाइन जो है ना, एक मार्केट सिमेट्री को इसको डिफाइन करती है. सो सो दिस इज वन राइस. तो यहां पर जो है द सिनर्जी क्रिएटेड बाय बायर्स एंड सेलर्स टिल्टेड इन फेवर ऑफ दी सेलर्स, इसीलिए तो मार्केट में गिरावट आई. और यहां पर जो आया द सिनर्जी क्रिएटेड, सिनर्जी यूज करूं या मैं ये बोलूं कि द फोर्स ऑफ एनर्जी क्रिएटेड बाय बायर्स एंड सेलर्स एक्टिंग टुगेदर एट द सेम टाइम, उसने इतना फोर्स क्रिएट किया कि ये जो पहला बॉटम है जो जून का मिडिल में बना, वहां से मार्केट ने बाउंस लिया. अब यहां पे मैं ये दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये दो जो एनर्जी पॉइंट्स है, जो पहला बॉटम क्रिएट किया और ये जो सेकंड बॉटम क्रिएट किया, ये अभी दोनों एनर्जी पॉइंट्स हैं. एनर्जी गेट्स ट्रांसमिटेड इनटू द फ्यूचर एंड स्पेस एज इट इज. फ्यूचर को बोलते हैं स्पेस एंड वी एक्सपीरियंस फ्यूचर थ्रू टाइम. ठीक है. तो ये स्पेस में ये एनर्जी नेवर गेट्स वेस्टेड, एनर्जी जस्ट गेट्स ट्रांसम्यूटेड. ओके, वो एक फिजिक्स का जो बात है, आप कोई फिजिक्स वाले से पूछ लीजिए. बट यहाँ पर जो अपना टेक्निकल एनालिसिस का जो बेसिस है वो मैं बता रहा हूँ आपके जानकारी के लिए कि ये जो एनर्जी पॉइंट है जिसने ये बॉटम क्रिएट करा, उसका प्लस ये एनर्जी पॉइंट जो दूसरा बॉटम क्रिएट करा, ये दोनों को कैरी करके वो इस स्ट्रेट लाइन में वो चल रहा है. वो पॉइंट और ये प्राइस डायरेक्शन का मिलाप इधर हुआ, मीटिंग इधर हुआ, तो वहां पर उस एनर्जी ने फिर से बॉटम क्रिएट करा और फिर एक नया उसमें राइज आया, बिकॉज दैट एनर्जी इज स्टिल एक्टिंग. एंड नाउ यू आर गोइंग टुवर्ड्स दैट एनर्जी स्पेस वंस अगेन. दिस इज द कंसेप्ट ऑफ अ वेल टेस्टेड ट्रेंड लाइन. तो आप अगली बार नेक्स्ट टाइम आप देखोगे ना, 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम वेल टेस्टेड ट्रेंड लाइन जो होगा ना, यू प्लीज अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एनर्जी सिस्टम्स. फॉर दोज हु डू नॉट नो, इट लुक्स लाइक अ जस्ट वन लाइन ड्रॉन. वो लाइन को कोई मैजिकल प्रॉपर्टीज नहीं है कि वो अपना पूरा इंडेक्स को ऊपर भेज देगा या कोई स्टॉक को ऊपर भेज देगा. बट उधर
गैदर्ड एंड ट्रांसम्यूटेड एनर्जी है उधर तक वो एक्ट करती है, और दैट इज वाई वी एक्सपेक्ट कि भाई ये 24,000 के आसपास ये नेक्स्ट एक्शन पॉइंट ऑफ द एनर्जी आ रहा है, इसीलिए वहां पर सपोर्ट मिलने का उम्मीद है। सपोर्ट मिलेगा ऐसा अपन ठोक के तो नहीं बोल सकते, उम्मीद है। अच्छा, ये तो हो गई एनर्जी वाली बात और ये प्राइस वाली बात। इसके साथ साथ आप देखिए ये कोई ब्लू मार्किंग्स है, ये ब्लू मार्किंग्स है टाइम चेंजेस का। टाइम भी एक एनर्जी साइकिल है विच इज पासिंग थ्रू, और चार्ट में अपन प्राइस और टाइम दोनों को कैप्चर करते हैं। तो ये पैटर्न्स के जरिए अपन एक प्राइस में कैप्चर करते हैं, वैसे ही टाइम में भी कैप्चर किया कर सकते हैं। मैं बहुत सारा मेहनत कर चुका हूँ टाइम टाइम साइकिल्स पे, और आई हैव सेवरल वेज ऑफ डूइंग टाइम साइकिल्स, एंड this is one of the ways, and these are markings. So if you see here, there are days when this blue marking is there, where there is a big downturn, where यहाँ पर एक डाउनटर्न आया और इसके नीचे ये टूटा जोर से, यहाँ पर एक हेजिटेशन आकर के then it turned up from this time period. It is not quantifiable by way of how much and all that, but it will just tell you that this is a place where some change will happen. Okay, time will tell you that something will happen. आपको जो आप लेके जाते हो ना कुंडली महाराज के पास, तो वो बोलता है कि आपका फलाना फलाना दशा चेंज होने वाला। दशा चेंज होने वाला है कि क्या मतलब, ये डेट और ये महीना या वॉट एवर ही सेज, वहां से आपका एक टर्निंग पॉइंट होगा। तो आप पूछेंगे कि अच्छा हो जाएगा, इसका थोड़ी मतलब है कि वो दशा जो दिन टर्न हो गया उस दिन से लाइफ आपका जिंगलाला है। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। वहां से एक टर्निंग पॉइंट मिलेगा कि जिस दिशा में तुम्हारी लाइफ चल रही थी वहां से कोई इंप्रूवमेंट आने की संभावना है, अज्यूमिंग दैट द नेक्स्ट दशा विच इज स्टार्टिंग इज समथिंग गुड। ये बात से तो सब लोग वाकिफ है, क्योंकि जिंदगी में सब लोग ने एक एस्ट्रोलॉजर से इसके बारे में कंसल्ट तो जरूर किया है। तो वैसे ही ये भी अपन एक चार्ट का कुंडली बना रहे समय के अनुसार। अभी इधर देखिए, इधर उसने बोला कि यहाँ पर एक चेंज पॉइंट आएगा, वैसे वो हैमर बनाया और वहां से एक छोटी सी बढ़त आई, फिर ये गिरावट आई, और इधर आपको मिल गया प्राइस का सपोर्ट। प्राइस का सपोर्ट ये उठा, यहाँ से वो साइडवेज गया, उस साइडवेज से टाइम का एनर्जी उसको मिला तो एक राइज मिला, फिर ये गिरावट आई, वापस वो प्राइस की एनर्जी में पकड़ा, अभी ये ऊपर गया और ये नीचे आ रहा है। और ये जो नेक्स्ट ये दिखा रहा है, दैट इज शोइंग which is coming on 24th of August, that is showing that there is going to be some time energy also which is going to be present. तो कुल मिला के ये क्या है, 24,000 बाई प्राइस, 24th अगस्त बाई टाइम। यहाँ पर अपने को अलर्ट रहना है, या तो प्राइस में अपने को चेंज मिलेगा या अपने को डायरेक्शन में कोई चेंज मिलेगा। कुछ भी हो, आपको तैयार रहना है फॉर सम चेंज टू टेक प्लेस इन द मार्केट। जो तैयार है, whoever is prepared, he will get the benefit of that preparation. लक किसको बोलते हैं? डेफिनेशन ऑफ लक इज प्रिपरेशन मीटिंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लक। तो आप प्रिपेयर करो 24,000 और 24 अगस्त का, तो प्रिपरेशन आप करेंगे और वहां पर आपको लक आपको ढूंढते हुए आएगा। ये बात आप समझ लीजिए। सेक्टर फोकस डिफेंस में मेन पॉइंट क्या था? ऑर्डर फ्लोज, कोलैबोरेशंस, ये सब तो आ रहे हैं। तो टिपिकली हम लोग क्या करते हैं, सीधा अपन लीडर के पास भागते हैं, मजगांव डॉक, हाँ, बीडीएल और कोचिन शिपयार्ड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके आगे तो अपन सोचते ही नहीं है। बट चलते 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 क्या है, ये जो डिफेंस का लिस्ट ऑफ स्टॉक्स है, एवरी डे दैट लिस्ट इज वाइडनिंग। तो अभी समय आ गया है, बिकॉज उसके अंदर इतना, जो मैंने आपको आगे दिखाया, ये जो स्लाइड में पहला वाला, इतना एक्टिविटी होने लगा है। दिस स्लाइड गॉट मिसप्लेस्ड, इट शुड हैव कम लेटर, डजंट मैटर। इतना एक्टिविटी हो रहा है, तो आपको ये सब ऑर्डर्स, ये तो मैंने मेन आइटम इधर ऐसे मेंशन किए, बिकॉज दैट इज व्हाट मेक्स इट टू द न्यूज़पेपर हेडलाइंस। But in defense sector now there are almost
several scores of companies. आप देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे आज के तारीख में कितने लिस्टेड कंपनीज हो गए. तो विच मीन्स लाइक आई सेड, आपको रिसर्च आगे करना है. तो रिसर्च आगे करना है तो आपको वाइडन द फोकस ऑन स्टॉक सिलेक्शन. सो लाइक आई से एवरी टाइम, वेयर टू फोकस योर research on. So this time I am telling you that please widen your focus on research in defense. So defense का ये जो है, ये defense का index है. Index आप देखेंगे तो this is one of the few indices which is hitting all time new highs. तो ये एक समय था और इस पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि इतने सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं लेकिन डिफेंस का इंडेक्स तो मूव ही नहीं हो रहा है. वो कई महीने पहले लिखे थे मैंने, आई थिंक अप्रैल मई में, और वो पब्लिश भी हुआ था एनडीटीवी प्रॉफिट के डिजिटल मीडियम में. और उसके बाद भी बहुत समय लगा, इट वेंट थ्रू पैचेस. बट अभी हाल में आप देखेंगे मार्केट इज सिटिंग अप एंड टेकिंग नोटिस. वो क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स भी आए एंड मार्केट हैज बीन हैप्पी विद क्वार्टरली रिजल्ट्स. सो ये सब करते करते जो चला है, डिफेंस हैज गॉन इनटू अ न्यू हाई. और इधर आप देखिए, ये जो अपना ट्रेंडर ऑसिलेटर है हमारा, तो उसमें दिस इज गॉन अप, रिलेटिव परफॉर्मेंस हैज स्टार्टेड गोइंग अप. सो दिस इज समथिंग विच इज गुड. तो इधर आप देखेंगे अभी, तो यहां पर मैंने 4 डिफेंस स्टॉक्स के नाम मैंने लगाया हुआ है. These are some stocks that you can see. Many of the mid cap, small cap stocks in defense are showing like this, that they are outperforming the NSE 500. This is outperforming. This is outperforming. This Russell Texas, I have taken it on weekly. This has been outperforming from a long time. And even though this is going sideways, so that is why the relative performance has come down, but it is still trading comfortably above zero. These are all on just taken up. So ये सब अभी शुरू हो रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली ये एरिया में और रिसर्च करना चाहिए. ये तो खाली इंफॉर्मेशन के तौर से मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ. दिस इज नॉट एन इन्विटेशन टू बाय और सेल. Now let us go into what I wanted. Every time now I'm covering as a new area, which is the mutual fund focus, because some people requested कि आप म्यूचुअल फंड पे भी थोड़ा बातचीत हो जाए, तो that will be something good. So because of that, I am also adding every time something on mutual fund section. So पिछले टाइम पे भी मैंने आपको बताया था कि IPO रिलेटेड कुछ, तो आप देखें तो म्यूचुअल फंड में आप अगर रिटर्न्स वगैरह देखें तो इट हैज बीन वेरी डाइवर्जेंट. ओके. एंड SIP seems to be doing a much better in creating returns than lump sum investment. That is, mutual funds, however, are very successful in constraining the downside participation. See, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो अपसाइड पार्टिसिपेशन कैप्चर होना चाहिए, और डाउन साइड जो होता है मूवमेंट मार्केट में, इनएविटेबली एवरी ईयर होता है या पीरियडिकली होता है, उसको उतना कैप्चर नहीं करना चाहिए. तो ये चीज के लिए अपन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं. तो उसमें देखेंगे तो अभी एक मैंने आपको एक चार्ट बताया हूं. दिस आई हैव टेकन म्यूचुअल फंड्स टॉपर्स एंड लैगार्ड्स. तो अगर आप देखेंगे आपके खुद के जो पोर्टफोलियो है, फर्ज करो कि आपके पास इतने स्टॉक्स हैं, आप उस स्टॉक्स के लिस्ट बनाएंगे तो करीब करीब ऐसे ही रहेगा. देयर विल बी लॉट्स ऑफ देम विद गेन्स, देयर विल बी लॉट्स ऑफ देम विद लॉसेस. मोटा मोटा आप देखो तो म्यूचुअल फंड भी ऐसे ही परफॉर्म करता है. ठीक है. और आप इधर देखो उनके परफॉर्मेंस कितने हैं 2 साल में. दिस इज द CAGR of 8%, 7%, 6%, 11% एंड ऑल ऑफ दैट. 11% और 13% आया आपको मिड कैप फंड में. अभी अभी अपना क्या बात हुआ कि भाई मिड कैप फंड एंड स्मॉल कैप फंड्स आर डिलीवरिंग यू वेरी गुड रिटर्न्स. तो आपको कहाँ देखना है? स्मॉल कैप फंड 15%, 11%, 10%. आप इधर देखो फ्लेक्सी कैप फंड्स 6% एंड 8%. तो जहां पर से आपको चेंज कराना है तो अभी का फोकस कहाँ होना चाहिए? इधर. बट इक्वली आप देखेंगे देर आर सो मेनी नेम्स who are there in this flexi cap funds. ये सब ने आपको पॉजिटिव रिटर्न दिए.
ये सारे फंड्स है जो आपको नेगेटिव रिटर्न दिए। हर एक कैटेगरी में ये लोग सब नेगेटिव रिटर्न भी दिए, बट आप देखेंगे तो नेगेटिव रिटर्न कम दिए कंपेयर टू द पॉजिटिव रिटर्न. So that is what also is seen here. Top funds that captured the upside and contained the downside. तो आप देखो डाउन साइड हमेशा, ये अगर 100% है तो ये डाउन साइड में पार्टिसिपेशन कम था. So these are all by names. This is Motilal Oswal and some union small cap and फलाना फलाना कोई कोई स्कीम्स है. ये लास्ट वाला क्या है भाई, कोई WOC, मुझे आइडिया भी नहीं है वो कौन सा म्यूचुअल फंड है. तो उसका अपसाइड कैप्चर तो बहुत बढ़िया है और डाउन साइड कैप्चर बहुत लिमिटेड है. तो यू वांट टिपिकली फंड टू डू दिस. सो एंड देन दिस इज द डिफरेंस इन द SIP रूट. SIP रूट में आप देखो रिटर्न्स हैव बीन मच बेटर. द डार्क ब्लू इज SIP रूट, द लाइट ब्लू इज इफ यू पुट लमसम. तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो SIP के रूट से करिए, दैट विल बी मच बेटर. So this is what I wanted to bring in mutual fund focus for this time. Returns are similar to what you will invest also, provided you take some help. या तो अच्छे म्यूचुअल फंड एडवाइजर से हेल्प लीजिए, नहीं तो हमारा जो नियो ट्रेडर सॉफ्टवेयर का हेल्प लीजिए, वो आपको इन्वेस्ट करने के लिए अच्छी एडवाइस देगा. वरना तो आपको ऐसा मिक्स रिटर्न मिलेगा और आपको मोटा मोटा ऐसे टाइप रिटर्न्स मिलेंगे. सो इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज, go the SIP route, put into mutual funds which are capturing more of the upside. This is my advice. Okay, so now let us go to the last item which I just wanted to share. एक मैंने पढ़ा था ये इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑन डिविडेंड्स. ये क्या था कि FY26 में सबसे अधिक डिविडेंड मिला इन्वेस्टर्स को, 5.13 ट्रिलियन रुपीस. इतना जबरदस्त डिविडेंड मिला है, मतलब क्वांटम में सबसे अधिक. बट इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था कि पे आउट जो कंपनी से किया ना, वो इज ओनली 27%. तो मतलब 27% पे आउट में इतना अधिक पैसा मिला है लोगों को. और ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये रेशियो तो गिरते ही आ रहा है. 36% से 30% हुआ, ये अभी 27% हुआ पिछले साल. और इसके पहले आप जाएंगे तो दिस वाज 40% एंड इट वाज 50% फॉर 2020. तो ये व्हाट डज दिस मीन? दिस मीन्स दैट कंपनीज आर रिटेनिंग मोर प्रॉफिट्स विद देमसेल्व्स. पहले इतना पे आउट क्यों करते थे कंपनीज? क्योंकि उनके पास ये पैसा लगाने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट एवेन्यू नहीं था, कोई स्कोप नहीं था. तो बोले चलो इन्वेस्टर्स को वापस दे दो, शेयर होल्डर को वापस दे दो. That is not the way. Companies should be investing the money, the profits they make into new businesses. फिर ही तो ग्रोथ आएगा, फिर ही तो आपका शेयर का वैल्यू बढ़ेगा और पैसा बनाएंगे आप. So now that they are retaining it, some of that money is going into new capex. This is also the discovery. But ये भी बहुत hesitantly हो रहा है. खाली 15% of the GDP went into new projects. अब आप देखेंगे पुराना FY3 to FY12, वहां पर 35% ऑफ कॉर्पोरेट इंडियाज मनी वेंट इनटू न्यू कैपेक्स. तभी इतना बड़ा ग्रोथ आया, इतनी बड़ी तेजी आई मार्केट में, जो 2018 में कल्मिनेट हुआ, फिर बाद में 20 से वापस ग्रो हुआ और 24 में कल्मिनेट हुआ. इट वाज बिकॉज ऑफ दिस ह्यूज कैपेक्स व्हिच हैपेंड एट दैट टाइम. दिस इज प्राइवेट कैपेक्स एंड गवर्नमेंट कैपेक्स. अभी जो है, because companies are retaining and they are hesitantly coming back. So this is overall some good news कि 15% of the GDP तो अभी कैपेक्स में आ रहा है. धीरे धीरे as companies overcome their hesitation, they will invest more and capex will grow, and this is another positive news. And this is all coming out of a detail कि भाई 50% का पे आउट हुआ 2020 का FY 2020, वहां से लेकर के अभी 27.6% हो गया. अगले साल आई एम श्योर दिस रेशियो विल बी स्टिल लोअर. बट लोगों का हाथ में कम पैसा आने वाला नहीं है, क्योंकि क्वांटम ऑफ डिविडेंड इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. ओके, so with that I think we come to the end of this. Let me summarize what we discussed. No change in market status at the gross level, क्योंकि वो रेंजिंग तो कंटिन्यू हो रहा है.
और ये पिछले सेवरल मंथ से हो रहा है। एब्सेंस ऑफ अपसाइड ट्रिगर है, उसकी बात हो गई, दैट मीन्स वीकनेस होगा। अब ये वीकनेस का मैंने आपको बता दिया क्या एक्सटेंड है, इमीडिएटली क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24,000 सपोर्ट और 24 अगस्त का डेट। मनी कहाँ जा रहा है, एसआईपी में आ ही रहा है ना, वो जा रहा है स्मॉल कैप और मिड कैप। वो दोनों इंडेक्स हाई पे पहुंच गए। और डिफेंस अपना फोकस वाला सेक्टर था, उसमें ऑर्डर फ्लो की कोई कमी नहीं है, वो तो लगातार आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। तो दैट हैज पावर्ड द इंडेक्स टू न्यू हाइस। तो अपने को ध्यान वहां देना है डिफेंस। ये कैश रिलेटेड वॉलेटिलिटी से क्या हुआ है, लास्ट में क्लोजिंग सेशन में वॉल्यूम्स एकदम खत्म हो गए, तो वहां पर अननेसेसरी वॉलेटिलिटी क्रिएट होता है। तो थोड़े समय के लिए आप 3:15 पे आप अपना चोपड़ा बंद कर दीजिए। जो आप 340 तक ट्रेड करेंगे तो थोड़ा खतरा से आप खेल रहे हो। अभी एफआई का अपन ने देखा, वो लोग भी दे आर ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। एक तरफ से एक डेटा था कि भाई उनकी बिकवाली कम हुई, बट इंडेक्स में उनकी बिकवाली ज्यादा हो गई। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच, क्योंकि ये ट्रिगर्स फ्रॉम ग्लोबल, इट इज नॉट रियली चेंजिंग, इट इज स्टिल ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। तो ये सब है, कंटिन्यूड प्रॉब्लम्स आर देयर एट द मैक्रो लेवल, बट एट द माइक्रो लेवल देयर आर सम पॉजिटिव्स। तो अपन पॉजिटिव्स ढूंढते रहे, जहां पर अपन काम कर सकते हैं वहां काम करें। सो दैट इज इट। वीडियो में यहाँ तक आप बने रहे तो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक जरूर कर दीजिए। जिसको आप हमारे चार्ट्स एंड बियॉन्ड के बारे में रेकमेंड कर सकते हैं जरूर करिए। दिस इज अ फ्री सर्विस एज ऑफ नाउ। वी हैव डन 40 एपिसोड सो फार। पिछले एपिसोड देखेंगे तो भी आपको लर्निंग मिलेगा। जरूर जाइएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिएगा, न्यू ट्रेडर। गो टू द प्लेलिस्ट, यू विल फाइंड ऑल ऑफ दीज वीडियोस। और हमारा न्यू ट्रेडर सॉफ्टवेयर में अगर आपको दिलचस्पी रहे तो हमारे सपोर्ट स्टाफ और हमारे सेल्स टीम के साथ जरूर कांटेक्ट करिएगा। थैंक यू वंस अगेन। दिस इज डॉक्टर नारायण साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन।